سوچا آپ نے؟ آپ میری باتیں بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس بارے میں جو پھر کیا بات کہی تھی آپ سے وہ بھی بھول گئے؟ یاد نہیں رہی تو تم بتا دو کیا بات تھی. وہ بھائی 10 باتیں چل رہی ہوتی ہیں میرے ذہن میں. اگر مجھے زندگی کی اتنی امپورٹنٹ کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں امی ابو سے بات کر لینی چاہیے. بچہ اڈاپٹ کرنے ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے نا مجھے نہیں لگتا امی ابو مانیں گے. میں تو ان کے مشورے سے کیا. ان سے یہ جان لینا چاہیے کہ تو مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ ارے مجھے سمجھ نہیں آتا. سونے دیتی ہے نہ جینے دیتی ہے. کمرے میں جا کے مر، اپنے شوہر کو دیکھ جا کے. اس کے بعد مجھ سے شاویر کا سامنا نہیں ہو پائے گا. رات میں جو تو نے حرکت کی ہے نا، کل رات سے تو میرے کمرے میں پڑی ہے اپنے کہو مجھ سے. اگر وہ 10 قسم کے سوال بنا کے اس کے منہ پہ مار پوچھے گا نا تو 10 قسم کے جواب 10 طرح کے سوال پوچھے گا. رات میں جانتی ہوں میں جس طرح میں نے بات سنبھالی ہے نا وہ میں تجھے تو جیسے باتیں بنانی آتی نہیں نا. بات بتا دوں، شاویر کو اب تجھ پہ پکڑی میں کسی بہانے سے، لیکن نہیں، تیری لالا والا شک ہو چکا ہے. صبر نہیں اماں، تجھے نہ میں تیرے اندر. ارے وہ 5 لاکھ روپے نکلوا لے کے آگے صبر کی کہاں چلتی ہے. تمہارے ڈیڈ مجھ سے انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی، آج تک کبھی نہیں لڑے. لیکن ایک بات ہے، ویسے ہاں یہ بات تو ہے، ڈیڈ نے اس معاملے میں بہت اچھے نے ہماری کبھی کوئی خواہش نہیں ڈالی. ویسے ڈیڈ مجھے بہت پیار سے رکھا. ڈیڈ آئے نہیں ابھی تک آفس سے؟ میری بات ہو گئی، تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں. ڈیڈ سے وہ کسی میٹنگ میں بزی ہیں، وہ بس کہہ رہے تھے کہ تھوڑا ویسے تمہارے ڈیڈ فبیہ تمہارے سسرال میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ تم بہت دنوں سے یہاں میرے پاس آئی تھی. یہ اچھا ہوگا اگر تم سب ٹھیک ہے. نہیں ماما، گھر چلی جاؤ. یہاں پہ میرا مطلب ہے ٹھیک ہوں، اور اگر میں چلی جاؤں گی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ڈیڈ ہے، وہ میرا بہت کا خیال کون رکھے گا؟ گھر میں نوکر کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہاں بالکل ٹھیک. امی وہ گھر کے کاموں میں تھوڑا سا مصروف. وعلیکم السلام. بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی. بیٹا تمہیں پتا اتنی دیر ہو گئی، کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا. صبح ہی سارے کام کر رکھ لیتی. اچھا نا، بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے. امی چلے؟ بالکل چلیں. تھا نا کہ آج ہمیں جانا ہے. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں. تم کہیں نہیں جا رہے، رشتہ ہم لینے جا رہے ہیں تمہارا. اور اپنا رشتہ خود لے کر جا رہا ہوں. تو تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر پہ رہو. امی یہ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا. سمجھ آئی؟ میں صبح سے تیار ہو رہا ہوں اور یہ کہہ رہی امی برا لگتا ہے. وہ کیا آ گیا؟ کوئی کچھ نہیں سوچے گا. سوچیں گے کہ ابھی رشتہ پکا ہوا نہیں، یہ لڑکا منہ اٹھا کے. امی میری مسکان سے آپ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں. بات ہو گئی ہے، انہیں پتا ہے ہمارے، اور میں آپ بھی لے چلتے ہیں نا، اس کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے. یار آریان، وہ بندہ ارے وہی بندہ جو تیرے پیسے لے کے پکڑا گیا ہے یار. کون؟ ہاں فیصل، کیسے یار؟ یہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پکڑا گیا ہے یار؟ میں سچ بتا رہا ہوں، میری اب بتایا کہ وہ بندہ پکڑا گیا ہے یار. بھی تھوڑی دیر پہلے پولیس والوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے یار اس کا یہ مطلب ہے کہ یار 1-1 روپیہ نکلوائیں گے ہم اس سے. اب مجھے میرے پیسے واپس مل جائیں گے. بالکل بھاگا تھا. مجھے یہ میرے پیسے واپس دلوا دے انشاءاللہ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یار تو فکر ہی نہ کر، پیسے تجھے مل جائیں گے واپس. یار بس پلیز کسی طریقے سے مجھے. میں تو خود چاہتا ہوں کہ تیرے پیسے تجھے واپس مل جائیں. تیرے پیسے میری وجہ سے ڈوبے تھے. ارے نہیں پلیز
ताकि मेरे सर से भी फिक्र खत्म हो कि मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं यार। तू तो मेरी मदद कर रहा था यार। इंशाल्लाह। हाँ मिलते हैं। ओके यार। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ, फिर मिलते हैं। प्लीज कभी ऐसा मत सोचना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुशी रिव्यू। नाजरीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। नाजरीन आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की आने वाली एपिसोड की, जो बहुत ही दिलचस्प होगी। नाजरीन इसमें आप देखेंगे कि ईमान की माँ ईमान को कॉल करती है और बताती है कि ईमान मुस्कान का रिश्ता आया है। तो ईमान कहती है अच्छा, तो वो कहती है हाँ, राहिम की अम्मी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा है कि कल वो हमारे घर आना चाहती हैं मुस्कान के लिए। ईमान बहुत खुश होती है और अपनी माँ को मुबारकबाद देती है। तो उसकी माँ कहती है हाँ ईमान, तो तुम ऐसा करना, कल लाजमी आना। तो ईमान अपनी माँ से कहती है कि नहीं सॉरी, मैं तो कल नहीं आ पाऊँगी, तो मेरा ऑफ़िस जाना ज़रूरी है। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, मुझे पता है तुम नाराज़ हो, नाराज़गियाँ भी अपने से होती हैं, बस ख़त्म कर दो, तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो ईमान मान जाती है और कहती है कि चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल आ जाऊँगी। और मुझे एक बात तो बताएं कि मुस्कान खुश है? तो ईमान की माँ कहती है हाँ मुस्कान बहुत खुश है। तो ईमान आगे से दुआ देती है कि अल्लाह करे मेरी बहन ऐसी खुश रहे। उसकी माँ आमीन बोलती है और कहती है कि अच्छा कल लाजमी टाइम पे आ जाना, और मैं अब कॉल बंद करती हूँ कि मुझे कल की तैयारी करनी है और मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो ईमान कहती है जी अम्मी मैं आ जाऊँगी, ओके अल्लाह हाफिज़। फिर नाजरीन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि फ़बीहा के अबू उसकी अम्मी के पाँव दबा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। फ़बीहा की अम्मी कहती हैं कि मैंने आप लोग को बहुत परेशान कर दिया है। फ़बीहा के अब्बू कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो फ़बीहा की अम्मी कहती है नहीं अब मैं थक चुकी हूँ, पता नहीं मैं कब ठीक होंगी। तो फ़बीहा के अब्बू कहते हैं कि नहीं तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, पॉजिटिव सोचो, तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। फ़बीहा की अम्मी नाज़रीन फिर कहती हैं कि मुझे लगता है अब या तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी या ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो फ़बीहा के अब्बू उसकी अम्मी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अच्छी खासी रिकवर कर रही हो ख़ुद को, और फिर तुम ऐसी सोच रखती हो, ऐसी बातें करने से तुम्हें और टेंशन होगी, तुम परेशानी में फिर बंदा और बीमार होता है। फ़बीहा की अम्मी कहती है कि आप झूठ बोलते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके झूठ से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जीने की लगन जाग जाती है और मुझे एक उम्मीद सी लग जाती है। फ़बीहा के अब्बू कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा, तुम सच में रिकवर कर रही हो। फिर उसकी अम्मी फ़बीहा के अब्बू को देख के मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मुझे आपसे एक बात करनी है। फ़बीहा के अब्बू कहते हैं जी बोलें। फ़बीहा की अम्मी कहती है कि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ना आपसे ना ज़िंदगी से। मैंने आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी ली, मुझे अब कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी रह गई हो, लेकिन मुझसे आप एक वादा करें। फ़बीहा के अब्बू कहते हैं जी बोलें, क्या वादा करना है? तो फ़बीहा की अम्मी कहती है कि मुझसे वादा करें कि जब मैं ना रहूं तो आप मेरे बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखेंगे। फ़बीहा के अब्बू उसकी अम्मी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम क्यों ना रहो, कहाँ जा रही हो तुम? और दूसरी बात है कि मैं बच्चों का अकेले ख्याल क्यों रखूँगा? नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों मिल के अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। तुम पॉजिटिव सोचो, तुम बिल्कुल ठीक हो रही हो और इंशाल्लाह खैर होगी, तुमने क्यों अपने दिल में वहम पाल रखे हैं? नाजरीन फ़बीहा की अम्मी कहती हैं कि मुझे पता है अब मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ। दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि शावीर जो काम से अभी थका हारा आता है, आते साथ सलाम करता है और सलाम का जवाब उसकी सास देती है। मानूर और उसकी अम्मी एक ही रूम में बैठी होती हैं और सलाम के बाद अभी शावीर बैठा ही था कि मानूर की अम्मी उसे कहती हैं कि शावीर तुम जाओ ज़रा मानूर को बाहर लेके जाओ, इसे घुमाओ फिराओ और इसे शॉपिंग करवाओ, इसे कुछ बाहर लेके जाओ ताकि ये घूमे फिरे, इसका दिल बहल जाए। देखो ना घर बैठे बैठे कैसे मेरी बच्ची बोर हो रही है। तो शावीर कहता है हाँ लेकिन अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो मानूर शावीर का मुंह देखती है और शावीर कहता है कि अभी इस वक्त मैं थका हुआ हूँ। इससे पहले कि मानूर कुछ कहती है शावीर, तो मानूर की माँ कहती है मर्द हमेशा बाहर से थके हारे ही आते हैं, और जब तुम अपनी बीवी को बाहर लेके जाओगे, इसे घुमाओ फिराओगे, इसके साथ टाइम गुजारोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारी थकन भी उतर जाएगी। शावीर मानूर का मुंह देखता है कि मैं भी मानूर कुछ बोले। मानूर चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। तो मानूर की अम्मी कहती है अरे तुम क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, चलो मानूर शाबाश तैयार हो जाओ, शावीर के साथ बाहर जाओ और बाहर अच्छा सा खाना खा के आओ।
देखो ना, शादी के बाद मेरी बच्ची कहीं गई नहीं, घर बैठे बैठे बोर हो के कैसी हो गई है। शाबिर तुम पता ना, ऐसी हालत में औरत का दिल घबराता है, वो तंग पड़ जाती है। तो चलो शाबाश, तुम जाओ मेरी बच्ची को बाहर लेके जाओ। मानूर की अम्मी ये बातें करती हैं और मानूर से कहती हैं कि चलो जाओ उठो। तो शाबिर कहता है कि हाँ चलो तैयार हो तुम, हम चले जाते हैं बाहर, खाना खा के आते हैं। जब शाबिर मानूर से कहता है कि चलो तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर जाते हैं, और ख़ुद उठ के बाहर निकल जाता है, तो मानूर पीछे अपनी माँ से कहती है कि अम्मा क्या करती हो तुम, सच बताओ, तुम्हारा अपना दिल था ना बाहर का खाना खाने का। तो मानूर की माँ कहती है, मानूर सच पूछो तो मैं इनके घर का खाना खा खा के बोर हो चुकी हूँ, मेरा इतना दिल कर रहा था कुछ बाहर का खाऊं, और तुम जाओ और मेरे लिए भी अच्छा सा पार्सल बनवा के ले आना। मानूर ये कहती हुए उठ जाती है कि अम्मा तुम्हारा कोई हाल नहीं। नाजरीन, फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान आसिफ साहब और अंबर के साथ बैठी होती है कि आसिफ साहब ईमान से पूछते हैं जावेयार किधर है। तो ईमान बताती है कि वो सो रहा है, मैंने उसे सुला दिया है। आसिफ साहब कहते हैं कि हाँ ठीक हो गया, बच्चों की नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर अंबर पूछती है कि हाँ ठीक किया। और आसिफ साहब पूछते हैं कि बताओ बेटा तुम्हारा ऑफ़िस कैसा जा रहा है। ईमान कहती है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन यह कि कल मैं ऑफ़िस नहीं जा पाऊँगी। तो अंबर के पूछने पे क्यों, ईमान बताती है कि वो असल में मुस्कान का रिश्ता आया है, तो मुझे अम्मी के घर जाना है। तो अंबर पूछती है कि कौन है, लड़का क्या करता है। ईमान बताती है कि महक भाभी का भाई राहिम का रिश्ता आया है, वो लोग कल आ रहे हैं मुस्कान को देखने के लिए। तो आसिफ साहब कहते हैं हाँ राहिम ये तो बहुत अच्छा लड़का है, नेक बच्चा है, सुलझा हुआ है। तो अंबर भी बहुत खुश होती है और ईमान से कहती है कि अच्छा तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया, चलो मैं ख़ुद कॉल कर लूँगी। तो ईमान कहती है कि नहीं, अम्मी ने कॉल करनी थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आप फबीहा की अम्मी को देखने गई नहीं है। तो अंबर कहती हैं कि अच्छा चलो मैं ख़ुद कॉल करके मुबारकबाद दे दूँगी। फिर ईमान पूछती हैं कि फबीहा की अम्मी कैसी हैं। तो अंबर कहती हैं कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी, और डॉक्टर भी कुछ ख़ास उम्मीद नहीं दिला रहे। तो ईमान कहती है कि लेकिन हमें दुआ करना चाहिए, इंशाअल्लाह खैर होगी और अल्लाह पाक रहम करेगा। मौजज़े भी होते हैं तो अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे, हमें दुआ करते रहना चाहिए। तो अंबर कहती है हाँ बेटा सही कह रही हो। इससे आगे नाजरीन आप देखेंगे कि मानूर और शाबिर बाहर होटल में बैठे होते हैं कि मानूर आगे पीछे देखते देखते मानूर की नज़र एक लड़के पे पड़ जाती है। वो लड़का भी मानूर ही को देख रहा होता है। तो ऐसे में शाबिर पूछता है कि मानूर तुम्हारी तबीयत ठीक है। मानूर नहीं सुनती। तो शामिर टेबल बजाते हुए कहता है कि हेलो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मानूर जो उस लड़के पे नज़रें जमाए बैठी होती है कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो शाबिर कहता है कि अच्छा चलो बताओ क्या खाओगी, और साथ वेटर को इशारा करता है पास आने का। जब वेटर पास आता है तो मानूर फिर देख रही होती है उस लड़के को, और शाबिर पूछता है कि क्या खाओगी। मानूर उसी देखते हुए जवाब देती है कि जो तुम्हारा दिल करे मंगवा लो। तो शाबिर कहता है कि नहीं मानूर कुछ बताओ, जो खाना है तुम बताओ अपनी मर्ज़ी का। तो मानूर एकदम से कहती है कि मुझे वाशरूम जाना है। नाजरीन वाशरूम का कह के मानूर उठ जाती है, और मानूर के उठते ही वो लड़का शाबिर के पास आता है और शाबिर से कहता है कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है। शाबिर कहता है क्यों, तुम इसे कैसे जानते हो। तो वो लड़का कहता है शाबिर से कि भाई बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। शाबिर कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। फिर वो लड़का कहता है कि ये लड़की तुम्हारी लगती क्या है, देखो इससे कोशिश करना बच के रहना। तो शाबिर कहता है ये मेरी बीवी है। वो लड़का तंजिया हंसते हुए कहता है बीवी। तो शाबिर कहता है हाँ क्यों, इसमें हंसने वाली क्या बात है। वो लड़का कहता है कि ये ऐसी नागन है कि जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, तुम कोशिश करो मेरे भाई इससे बच के रहो। शाबिर पूछता है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो। वो लड़का बताता है कि ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और उसका सारा बैंक बैलेंस लेकर फ़रार हो गई। इसका यही काम है, नए नए मुर्गे फंसाती है और उनका बैंक बैलेंस लूट कर यह गायब हो जाती है। वो ये बात कर ही रहा होता है कि मानूर वापस आती है। मानूर को आता देखकर वो लड़का अपनी सीट पे चला जाता है, और मानूर आते साथ शाबिर से पूछती है कि ये क्या कह रहा था, कुछ बता रहा था। शाबिर कहता है नहीं, ये घर का एड्रेस पता कर रहा था। मानूर कहती है अच्छा। शाबिर कहता है बैठो खाना खाएं। मानूर कहती है नहीं छोड़ो, हम खाना फिर कभी खाएंगे, अभी घर चलते हैं। शाबिर कहता है जब आए हैं तो खाना खा लो। तो मानूर कहती है कि नहीं खाना नहीं खाते, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको पता है ना शाबिर, तुम्हें तो पता है ऐसी हालत में तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है, तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, हम घर जाते हैं। शाबिर कहता है अच्छा चलो ठीक है। मानूर और शाबिर होटल से निकल आते हैं। नाजरीन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहिम और मुस्कान कॉल पे बात कर रहे होते हैं, और राहिम मुस्कान को बताता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब हम कल रिश्ता लेकर आ रहे हैं। खुशी होते हुए बता रहा होता है। मुस्कान मजाकन कहती है कि इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिश्ता लेके आ रहे हो, बारात लेकर नहीं आ रहे।
तो रायम कहता है वो भी बहुत जल्द ले आऊँगा। मुस्कान पूछती है कि कब लाओगे, तो रायम हंसते हुए कहता है इंशाल्लाह बहुत जल्द लाऊंगा। तो मुस्कान भी हंस देती है। और फिर रायम पूछता है कि मुस्कान कल तुम वैसे चाय वो लेके आओगी जैसे लड़कियां लेके आती हैं जब लड़के वाले देखने आते हैं। तो मुस्कान हंसते हुए कहती है हाँ चाय लेके आऊँगी और गर्मा गर्म चाय आप पे गिरा दूँगी। तो रायम कहता है हाँ देखो फिर मैं तुम्हें कैसे डांटूंगा, ज़रा तुम मेरी बीवी बन के मेरे घर आओ और तुम्हें पता चले कि मैं कितना सख्त गुस्से वाला शौहर हूँ। तो मुस्कान कहती है कि मुझे डांटना नहीं, क्योंकि अगर मुझे कोई डांटे तो मैं रो देती हूँ। तो रायम हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं एक अच्छा शौहर बनूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। और वो दोनों कॉल पे ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं नाजरीन कि फिर आप देखेंगे कि शाबिर और मानूर गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं कि मानूर एक दफ़ा फिर पूछती है कि वो लड़का क्या कुछ बता रहा था। तो शाबिर कहता है नहीं, सिंपल वो घर का एड्रेस पता कर रहा था, तुम क्यों परेशान हो, कोई बात है। तो वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और फिर शाबिर पूछता है अच्छा बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहती है, मानूर कहती है कि पहले से बेहतर है। और फिर मानूर शाबिर से पूछे काम कैसा चल रहा है। तो शाबिर कहता है हाँ अच्छा चल रहा है, और बताओ अगर कुछ खाना है। तो मानूर कहते नहीं कुछ नहीं खाते, सीधा घर जाते हैं। नाजरीन वो घर आते हैं जब इधर मानूर की अम्मी मानूर के कमरे में 5 लाख रुपए ढूंढ रही होती हैं और अलमारी में देखती है, कबर्ड में, बाकी आगे पीछे देखती है तो उसे नहीं मिलते। और वो कहती है कि 5 लाख रुपए ऐसे छुपा कर रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए, जैसे 5 करोड़ हों। और जैसे ही उसे कबर्ड में एक एनवेलप नज़र आता है वो उसे निकालती तो उसमें पैसे होते हैं। वो देख के खुश होती है। वो जैसे ही चलने लगती है तो ऊपर से मानूर और शाबिर कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं। शाबिर अपनी सास को अपने रूम में देख के बहुत हैरान और परेशान होता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मानूर की अम्मी कहती है मैं यहाँ वो अपनी चीज़ें कुछ लेने आई थी। शाबिर कहता है चीज़ें। मानूर कहती है हाँ वो अम्मी अपनी दवाइयाँ लेने आई होंगी। तो अम्मी आपकी दवाइयाँ मैंने आपके कमरे में रख दी हैं। तो मानूर की माँ कहती है कि हाँ चलो ठीक किया, दवाइयाँ मेरे कमरे में हैं, अच्छा मैं ले लूँगी। और तुम लोग बताओ ना, बाहर गए थे, खाना तो बहुत मज़े का होगा, तुम लोग को अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया तुम लोगों ने। तो शाबिर कहता है कि जी हमने एंजॉय किया और खाना हम पैक करवा के साथ ले आए हैं। फिर मानूर अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी आप हमारे साथ ही खाना खा लेना। तो उसकी अम्मी कहती है कि नहीं बेटा मैं तुम लोग खाना खाओ, मैं अपने रूम में। तो मानूर अपनी अम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि नहीं आप हमारे साथ इधर ही खाना खा लें। जैसे माँ का हाथ झटकती है तो उसकी माँ के हाथ से एनवेलप और पैसे नीचे गिर जाते हैं, जो शाबिर देखकर बहुत हैरान और परेशान होता है। शाबिर कभी मानूर का मुंह देखता है और कभी अपनी सास का, और उसकी सास घबरा जाती है और बेचारा समूह बना के मानूर को देखती है कि अब बात को संभालो। तो शाबिर पैसे उठाते हुए कहता है कि ये क्या है, पैसे आपके पास क्या कर रहे हैं। तो मानूर की माँ कहती है वो मुझे मानूर ने कहा था कि अम्मी अपने पास रख लेना, मेरे पास बेटा सेव होंगे। तो मैं पता है मानूर लापरवाह है और उसके पास कैसे ऐसी चीज़ें रह सकती हैं, वो जैसे आए रख देती है, तो मैंने सोचा गुम ना हो जाए। और फिर मानूर को देखती है। मानूर फ़ौरन अपनी माँ की पर्दापोशी करते हुए कहती है कि जी शाबिर मैंने ही कहा था अम्मी को कि अपने पास रख लें, मुझसे गुम ना हो जाए। तो शाबिर गुस्से से पैसे उठाता है और कहता है हम कोई बच्चे हैं जो पैसे गुम कर देंगे। और ऐसे कह के और अपनी सास से कहता है कि ख़बरदार आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। गुस्से से ऐसे कहता है और उसकी सास कहती है नहीं शाबिर बेटा, और रूम से निकलने लगता है कि मानूर से कहती है कि शाबिर ठहरो खाना तो खा लो। तो शाबिर गुस्से से मानूर से कहता है कि खाना तुम ही खाओ अपनी अम्मा के साथ, और वो निकल जाता है। उसके निकलते ही मानूर की माँ कहती है मानूर चलो आओ खाना खाएं। तो मानूर कहती है अम्मी ये आपने क्या किया, कभी तो सब्र कर जाया करो कि तुम्हें बहुत जल्दी होती है, 5 लाख रुपए में निकलवा लेती, लेकिन तुम्हें सब्र नहीं था। तो मानूर की माँ फिर कहती है छोड़ो ना मानूर आओ खाना खाते हैं, खाना तो बहुत मज़े का लाई हो तुम मेरे लिए। तो वो कहती है कि मानूर कहती है कि अम्मी पहले शाबिर को मुझे जाके समझाने दो, मुझे उससे बात करने दो। और मानूर भी शाबिर के पीछे फिर रूम से बाहर निकल जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक आर्यान के लिए चाय लेके आती है और आर्यान को चाय देती है और कहती है कि फिर आपने क्या सोचा। आर्यान कहता है किस बात का। तो महक कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम बात आपसे डिस्कस की और आप हैं कि मेरी ये बात भूल जाते हैं। तो आर्यान हंसते हुए महक से कहता है कि अरे महक खफ़ा क्यों होती हो, मैं दिन में 10-100 बातें मेरे माइंड में आती हैं, अब अगर एक आध बात निकल गई है तो प्लीज़ तुम ही बता दो ना। तो महक आर्यान का मुंह देखते हुए कहती है मैंने आपसे कहा था कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। तो आर्यान महक को देखता है और कहता है ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, तो मुझे लगता है कि हमें पहले अम्मी अब्बू से बात कर लेनी चाहिए। महक फ़ौरन कहती है अंकल आंटी तो नहीं मानेंगे।
تو आर्यन कहता है लेकिन उनके बगैर मैंने कभी कोई फ़ैसला नहीं किया और ये तो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला है, मैं ऐसे ख़ुद से अकेले नहीं कर सकता, मुझे अम्मी अबू से बात करना होगी। तो महक कहती है कि चलें आए फिर बात करते हैं। आर्यन कहता है हाँ बात करते हैं। और महक कहती है अगर अंकल और आंटी ने मना कर दिया तो आर्यन कहता है हाँ ठीक है बात करते हैं, अगर वो मान गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर अम्मी अबू ना माने तो हम बच्चा अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो मुस्कान के महक कहती है हाँ चले ठीक है आए फिर अम्मी अबू से बात करते हैं। आर्यन कहता है हाँ चलते हैं बाबा, मैं चाय तो पी लूँ। तो वो दोनों चाय पीते हैं और उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मानूर अपनी माँ के कमरे में सो रही होती है और मानूर की माँ आती है और मानूर को झंझोड़ते हुए उठाती है कि मानूर मनहूस मारी उठ जाओ, जब देखो सोई मरी रहती हो। उसकी माँ उसे कोसने दे रही होती है कि मानूर कहती है माँ क्या मुसीबत है, न चैन से सोने देती हो, ना उठने बैठने देती हो, क्या करूँ मैं। तो मानूर की माँ मानूर को उठाते हुए कहती है कि उठो जाओ अपने शौहर का कुछ अता पता करो, कल रात से मेरे कमरे में मरी पड़ी हो, तो अभी अपने रूम में जाओ। तो मानूर उठ के बैठती है और कहती है अम्मा कल रात जो आपने हरकत की है ना, तो अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं शाविर का सामना करूं। उसकी माँ कहती है मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो मानूर कहती है अम्मा आप चोरी कर रही थी। मानूर की माँ कहती है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, जाके तुम बात को संभाल लो। तो मानूर कहती है वो मुझे पता है कि जैसे कल रात को मैंने बात को संभाला, आप तो बस काम करके बेफिक्र हो जाती हैं। तो मानूर की माँ कहती है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और शाविर का सामना करना इतना मुश्किल नहीं है, जाओ उसके लिए नाश्ता बना के ले जाओ, खुश हो जाएगा, उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो मानूर कहती है कि वो 10 सवाल करेगा मुझसे। मानूर की माँ कहती है अगर वो 10 सवाल करे तो 10 जवाब बना के उसके मुंह पे दे मारो, तुम बच्ची हो तुम्हें जवाब देना नहीं आता, मुझसे ज़्यादा तुम मारो। तो मानूर कहती है कि अम्मा प्लीज़ मुझे कुछ सोचने दें, सब्र कर लिया करें। तो मानूर की माँ कहती है अच्छा जाओ छोड़ो, दफ़ा करो, रात गई बात गई। मानूर की माँ को तो जैसे इस चीज़ की परवाह ही नहीं होती, उसका है कि मकसद होता है खाना और पैसे लेना। वो आए वक्त मानूर को यही मशवरा देती है कि कोई भारी रकम निकलवाओ और यहाँ से निकलें। मानूर अपनी माँ से कहती है कि अम्मा सब्र कर लिया करो, 5 लाख रुपए मैं किसी न किसी तरह शाविर से ले ही लेती, लेकिन तुम में तुम्हारा लालच के आगे सब्र कुछ नहीं है, तुम कहाँ सब्र करती हो, तुम्हें जस्ट अपनी पड़ी होती है। तो उसकी माँ कहती है जाओ ज़्यादा बातें ना करो और बकवास बंद करो और जाओ अपने शौहर को नाश्ता दो। नाश्ता देते वक्त उसको सारा गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। और मानूर माँ को गुस्सा से देखते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। नाजरीन इसके बाद आप देखेंगे कि आर्यन महक को लेके अम्मी अब्बू के पास आता है और कहता है कि अब्बू मुझे आपसे एक बात करनी है। तो आसिफ साहब और अंबर बैठे होते हैं और कहते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है। आर्यन कहता है अम्मी अब्बू जैसा कि आपको पता है हमारी औलाद नहीं हो सकती। आसिफ साहब और अंबर एक दूसरे को देखते हैं और फिर अंबर आर्यन से कहती है हाँ बेटा हमें पता है, लेकिन हम हर वक्त और हर काम में हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो आर्यन कहता है महक को देखते हुए कि जी अम्मी जैसा कि हमारी औलाद नहीं हो सकती और फिर हमारा दिल है कि हम क्यों ना एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। मानूर पुरुमीद नज़रों से अपने सास और ससुर को देखती है। तो ये बात सुन के आसिफ साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और अंबर का मुंह देखना शुरू कर देते हैं। इधर से अंबर आसिफ साहब का मुंह देखती है और कहती है कि आर्यन मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ये फ़ैसला बहुत जल्दी किया है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला पे यकीन रखो, भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर औलाद देगा। और वो लोग भी हैं जिनकी शादी को कितना कितना अरसा गुजर जाता है और वो अल्लाह पे यकीन किए बैठे रहते हैं और अल्लाह उन्हें नवाज भी देता है। तुम्हारी शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है, मेरी मानो तो अभी सब्र करो और अल्लाह तुम्हें सब्र का फल ज़रूर देगा। महक की आस टूट जाती है और वो पुर उम्मीद नज़रों से फिर अपने ससुर को देखती है कि हो सकता है वो इसके हक़ में बात कर दें। महक को जल्दी होती है बच्चा अडॉप्ट करने की। तो वो कहती है कि अब्बू आप क्या कहते हैं। तो आसिफ साहब कहते हैं बेटा मैं भी यही कहूँगा कि सब्र से काम लो और अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर देंगे तुम्हें औलाद, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। तो महक दोनों की तरफ से मायूस होकर शौहर को देखती है और आर्यन भी महक का मुँह उतरा हुआ मुँह देखता है। और फिर अंबर कहती है कि जैसे फिर भी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन हम यही कहेंगे कि अभी सब्र से काम लो, इंतज़ार करो। महक कहती है जी अब्बू अगर आप भी यही चाहते हैं कि हम थोड़ा और इंतज़ार करें तो चलें ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। ये कह के महक कुछ उदास सी होकर उठ के चली जाती है। आर्यन महक को जाता हुआ देखता है, आसिफ साहब भी। और फिर आसिफ साहब अपने बेटे के घुटने पे हाथ रखते हैं और उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ख्याल रखो, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। दूसरी तरफ नाजरीन आप फिर देखेंगे
کہ مانور ناشتہ بنا کے لاتی ہے اور شاویر سے کہتی ہے شاویر اٹھو. شاویر نہیں بولتا تو وہ کہتی ہے شاویر اٹھ جاؤ. شاویر کہتے ہیں ہوں کیا مصیبت ہے. مانور کہتی ہے اٹھو ناشتہ کر لو. مصیبت نہیں یہ پیار ہے اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں. مانور یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ شاویر اٹھتا ہے اور مانور کہتی ہے اٹھ کے ناشتہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیسا بنا ہے. تو شاویر چائے کا سپ لیتے ہوئے کہتا ہے چائے تو بہت اچھی بنی ہے. مانور خوش ہو جاتی ہے اور شاویر ناشتہ کرنے لگتا ہے اور پھر مانور شاویر سے کہتی ہے کہ وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. شاویر حیران نظروں سے مانور کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں. تو مانور کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں اور اپنا چیک اپ کروا لوں. شاویر کہتا ہے اچانک سے ایک دم سے کہ نہیں ڈاکٹر کے ساتھ میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا, تم اماں کے ساتھ نہیں جاؤ گی. مانور کہتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو, تم آرام سے لیٹو, اپنی نیندیں پوری کرو, میں اماں کے ساتھ چلی جاؤں گی. شاویر کہتا ہے نہیں میں اپنی اولاد کے لیے کم از کم اتنا کر سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے, اور تمہیں میں خود اپنے ساتھ گاڑی پر لے کے جاؤں گا, تم اماں کے ساتھ تو ہرگز نہیں جاؤ گی. مانور کہتی ہے دیکھو شاویر تسلی سے سوچو, تم کام سے تھکے آتے ہو, تم اپنا کام دیکھو اور اپنی نیند پوری کرو, میں اماں کے ساتھ چلی جاؤں گی. شاویر کہتا ہے کہ ہرگز نہیں, تم رکشے پہ کیسے دھکے کھاتی پھرو گی, میں تمہیں کسی صورت اماں کے ساتھ نہیں جانے دوں گا, اور میں نے کہہ دیا نا کہ میں خود لے کے جاؤں گا. تو مانور کچھ ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے. ناظرین پھر آپ دیکھیں گے کہ فبیہہ اپنی ماں کے پاس دوائی لے کے جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما دوائی لے لیں. تو اس کی ماں دوائی دیکھتی ہے کہتی ہے کہ نہیں فبیہہ اب مجھ سے نہیں کھائی جاتی, میں دوائیاں کھا کھا کے تھک چکی ہوں, اب مجھ سے اور دوائی نہیں کھائی جائے گی, میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہے. فبیہہ کہتی ہے نہیں ماما دوائی تو لینی پڑے گی, اور اس کی ماما کہتی ہے نہیں اب میں تھک گئی ہوں, مجھے کوئی دوائی نہیں لینی. فبیہہ کہتی ہے ماما آپ دوائی لیں گی یا پھر میں ابو کو کال کر کے بلاؤں. تو فبیہہ کی ماما کہتی ہیں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ نہیں بابا معاف کرو, اپنے ڈیڈ کو مت بلانا, وہ تو آتے ساتھ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور مجھے دوائی دے کے رہیں گے. تو فبیہہ کہتی ہے پھر آپ ایسا کریں مجھے سے دوائی لے لیں. فبیہہ کی ماں دوائی لیتی ہے اور دونوں ماں بیٹی بیٹھ جاتی ہیں. فبیہہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی, آپ پریشان بالکل نہ ہوں. تو فبیہہ کی ماں فبیہہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقت رک سا گیا ہے, سب کچھ ختم ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں رہا. تو فبیہہ کہتی ہے کہ ماما آپ ایسی باتیں نہ کریں, اور کہتی ہے کہ ویسے ڈیڈ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں. اس کی ماں کہتی ہے ہاں تمہارے ڈیڈ بہت اچھے ہیں. فبیہہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ ماما آپ کی بھی تو لو میرج ہوئی تھی نا. اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ہاں لو میرج ہوئی تھی, جبکہ اس وقت لو میرج ہونا بہت مشکل تھا, لیکن پھر بھی تمہارے ڈیڈ نے اپنے پورے خاندان سے لڑ کے مجھ سے شادی کی. تو فبیہہ کہتی ہے ماما پھر آپ نے گھر والوں کو منا لیا تھا. تو فبیہہ کی ماں فبیہہ کو بتاتی ہے کہ ہاں میرے گھر والے بہت مشکل سے مانے تھے اور مجھے کافی ٹائم لگا تھا گھر والوں کو منانے میں. فبیہہ کہتی ہے امی پھر مان تو گئے تھے نا. تو فبیہہ کی ماں کہتی ہے کہ ہاں پھر جیسا بھی ہو اولاد کے لیے والدین مان ہی جایا کرتے ہیں. فبیہہ مسکرا دیتی ہے اور پھر فبیہہ کی ماما کہتی ہیں کہ ویسے ایک بات ہے کہ مجھے شادی کے بعد تمہارے ڈیڈ نے بہت خوش رکھا, اس نے مجھ سے کبھی لڑائی نہیں کی, مجھے کبھی دکھ نہیں دیا, میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے. اب یہ بیماری ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, ورنہ تمہارے ڈیڈ نے مجھے بہت خوش رکھا ہے, میں نے ان کے ساتھ بہت اچھی اور خوبصورت زندگی جی ہے. فبیہہ کہتی ہیں ہاں ماما, اور وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے ڈیڈ نے میرا بہت خیال رکھا ہے. تو فبیہہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے ہاں ویسے ڈیڈ نے کبھی بھی ہماری کوئی خواہش رد نہیں کی, ہمیشہ کوئی بھی بات ہو تو فوراً پوری کرتے ہیں. تو فبیہہ کی ماں کہتی ہے ہاں تمہارے ڈیڈ بہت اچھے ہیں, انہوں نے اپنے پورے خاندان سے لڑ کے مجھ سے شادی کی, مجھے عزت بھی دی, مجھے مقام بھی دیا, میرا خیال بھی رکھا اور مجھ سے محبت بھی کی. فبیہہ خوش ہوتی ہے اور دونوں ماں بیٹھی ہوتی ہیں. اور پھر فبیہہ کی ماں پوچھتی ہے کہ بات سنو تمہارے ڈیڈ ابھی آئے نہیں. فبیہہ کہتی ہے کہ نہیں میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں آفس میں ایک بزنس میں میٹنگ میں مصروف ہوں تو میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا. فبیہہ کی ماں کہتی ہے اچھا. اور پھر کہتی ہے فبیہہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے, تم یہاں ہو, تمہارے لیے پیچھے سسرال میں کوئی مسئلہ نہ بنے. فبیہہ کہتی ہے نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں, میں یہاں ہوں, آپ کا خیال رکھوں گی. فبیہہ کی ماں کہتی ہے نہیں تمہاری ساس کو برا لگ سکتا ہے. فبیہہ کہتی ہے نہیں امی آپ بالکل پریشان نہ ہوں, آنٹی کو برا نہیں لگے گا, انفیکٹ انہیں پتہ ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور میں وہاں چلی جاؤں تو آپ کو کس کے سہارے چھوڑوں. تو فبیہہ کی ماں کہتی ہے تمہیں پتہ ہے گھر میں نوکر چاکر ہیں, تمہارے ڈیڈ ہیں, میرا اتنا خیال رکھتے ہیں. فبیہہ کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیڈ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہاں اپنی نظروں کے سامنے
रखना चाहती हूँ और ख़ुद में तसल्ली में हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और फिर फबिया कहती है कि अम्मा मैं सूप बना के लाती हूँ तो प्लीज़ 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 आप पी लें। उसकी अम्मा कहती है नहीं, फबिया कहती है प्लीज़ मम्मा, और उसके इसरार करने पे उसकी माँ मान जाती है और फबिया उठ के जाती है सूप बनाने के लिए। नाजरीन, फिर आप देखेंगे कि राहिम की माँ बार बार राहिम से कह रही होती है कि आप ही को कॉल करो, महक किधर रह गई है, अभी तक आ क्यों नहीं रही। राहिम कहता है अम्मी मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ महक आपी को, लेकिन आपी ना तो मेरी कॉल उठा रही हैं और ना कोई जवाब दे रही हैं। तो उसकी माँ कहती है पता नहीं कहाँ रह गई। तो राहिम कहता है मैं फिर एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। राहिम जैसे ही कॉल करने लगता है कि महक के अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आती है और वो पीछे से आ जाती है। राहिम की माँ और राहिम दोनों जवाब देते हैं और राहिम की माँ कहती है कि बेटा तुम कहाँ रह गई थी, तुम्हें पता है ना आज हमने रिश्ता लेने जाना है। तो महक कहती है हाँ आए चलते हैं। तो राहिम कहता है हाँ बिल्कुल चलते हैं क्योंकि अब हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो राहिम की माँ कहती है कि हाँ चलो, और फिर महक कहती है ये कहाँ जाएगा। राहिम की माँ कहती है कि महक तुम्हें इतनी देर क्यों लगा दी। तो वो कहती है अम्मी आपको पता है बस घर के छोटे छोटे काम थे तो उसमें बस टाइम का कुछ पता नहीं चला, वो काम ज़रूरी थे। तो महक की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें पता था हमने आज राहिम का रिश्ता लेके जाना है, तो ऐसे में तो तुम काम ज़रा जल्दी निपटा लेती। तो महक कहती है अच्छा ना अम्मी। तो राहिम कहता है चलें अब चलते हैं। महक राहिम की तैयारी देखती है और कहती है कि ये कहाँ जा रहा है। तो राहिम कहता है क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ, मैं आप लोग के साथ जा रहा हूँ, अपना रिश्ता लेने में ख़ुद जा रहा हूँ। तो महक कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर बैठोगे। तो राहिम कहता है ये क्या बात हुई, मैं जो सुबह से तैयार खड़ा हूँ, तैयारी कर करके आपसे पहले मैं तैयार हूँ और अब आप कह रही हैं कि मैं घर रह जाऊँ। तो महक कहती है कि नहीं अम्मी ये नहीं जाएगा। तो उसकी अम्मी कहती है महक बेटा। तो राहिम कहता है देखें ना अम्मी आप ही को समझाएं कि मेरा जाना ज़रूरी है। तो महक कहती है कि नहीं अम्मी वो लोग क्या सोचेंगे कि पहली दफ़ा रिश्ता लेने आए हैं और लड़का ख़ुद मुँह उठा के चला आया है। तो महक की माँ हंस देती है और राहिम कहता है आप ही वो ऐसा कुछ नहीं सोचते क्योंकि मेरी मुस्कान से बात हो चुकी है। मुस्कान उन लोगों को पता है कि मैं भी आ रहा हूँ और उन्होंने खुशी से इजाज़त भी दी है। महक कहती है देख रहे अम्मी मुझे तो लगता है कि वैसे इसे घर रहना चाहिए, इसे नहीं जाना चाहिए। तो महक की माँ कहती है चलो महक जब उन लोगों को पता है और राहिम भी खुश है तो ठीक है फिर हम चलते हैं। नाज़रीन उसके बाद आप देखेंगे कि आर्यन का मोबाइल बजता है और आर्यन को कॉल आती है उसके दोस्त की, और उसका दोस्त उसे बताता है कि यार तुम्हें एक बात बतानी थी, वो बंदा पकड़ा गया है। आर्यन पूछता है कौन सा बंदा। तो उसका दोस्त उसे बताता है वही जो उसने तुम्हारे पैसे खा के भाग गया था, आजकल सुना है कि वो पुलिस कस्टडी में है। तो आर्यन कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका दोस्त कहता है हाँ अच्छी बात तो है, मैं सोच रहा हूँ कि उससे मिलूँगा और उससे एक रुपया निकलवाऊँगा। तो आर्यन कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसके पास जाएंगे और उससे एक रुपया लेंगे, वापस निकलवाएंगे। तो उसका दोस्त कहता है हाँ ज़रूर, उससे एक रुपया वापस लेना है हमने। तो आर्यन भी कहता है हाँ ठीक है, और उसका दोस्त कहता है कि उससे अब इतना पैसा तुम्हारा सारा पैसा वापस लेंगे। पता है मेरे दिल पे एक बोझ था कि तुम्हारा पैसा मेरी वजह से डूब गया, अब अगर वो बंदा मिल गया तो कम से कम मुझे तसल्ली उससे सारा पैसा निकलवाएं। तो वो कहता है आर्यन कहता है कि हाँ यार पैसे तो सारे निकलवाएंगे। और फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ अब मैं मुतमईन हूँ कि वो बंदा मिल गया तो उससे तुम्हारा एक रुपया निकलवाऊँगा, वरना मेरे दिल पे एक बोझ रहता था कि तुम्हारा पैसा मेरी वजह से डूब गया। तो आर्यन कहता है कि नहीं यार तुम ऐसा बिल्कुल ना सोचो, तो देखो अब वो बंदा मिल गया तो हम उससे अपना एक पैसा ले लेंगे। आर्यन का दोस्त कहता है हाँ बिल्कुल। तो आर्यन कहता है और तुम ऐसा ना सोचो कि मेरा पैसा तुम्हारी वजह से डूब गया, शायद उस वक्त मेरे मुकद्दर में यही लिखा था और तुमने तो मेरे भले के लिए कहा था, इसमें तुम्हारा अपना फ़ायदा कोई नहीं था और ना तुम्हारी कोई गलती है, बस जो होना था हो गया। अब ये अच्छी बात है कि वो बंदा मिल गया है तो हम उससे अपने पैसे ले लेंगे। तो आर्यन का दोस्त कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, मैं पता करता हूँ कि वो किस थाने में है और हम सुबह ही जाके उससे मिलते हैं और पुलिस को सारा मामला बताते हैं। तो कोशिश यही होगी कि पहली फुर्सत में उससे अपना सारा पैसा निकलवाएं। आर्यन कहता है हाँ ये बात ठीक है, और आर्यन का दोस्त कहता है कि वैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दिल पे एक बोझ रहता था कि तुम्हारे पैसे हैं मेरी वजह से डूब गए तो अब मैं इसका क्या करूँगा। शर्मिंदा भी होता था और अपने पास इतने थे नहीं कि तुम्हें वापस कर पाता। आर्यन कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल ऐसा ना सोचो, तुम मेरे भाई हो, ये सब कुछ उस वक्त मेरे नसीब में लिखा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बिल्कुल दिल में और दिमाग में ऐसी कोई बात ना लाओ, और मेरे दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम भी ऐसी बात बिल्कुल ना सोचो कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। तो बस अब अपना रिलैक्स रहो, और अब तो अल्लाह खैर करे वो बंदा भी मिल गया है तो हम उससे वो
اب وہ بندہ بھی مل گیا ہے اور ہم مل کے اس سے پیسے لے لیں گے، اور تم ایسی کوئی بھی بات اپنے مائنڈ میں نہ لاؤ۔ اس کو دوست کہتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اس معاملے کو انشاءاللہ جلدی۔ اور ناظرین پھر آپ دیکھیں گے کہ ماہنور کی ماں جیسے جسٹ کھانے کی اور پیسوں کی پڑی، ناظرین پیسوں کا لالچ اس عورت کو خراب کر دے گا، اور ماہنور وقتاً فوقتاً اپنی ماں کو فی الحال سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اپنے لالچ کو ایک حد میں رکھو، قابو میں رکھو، لیکن ماہنور کی ماں سمجھنے والی نہیں ہے، اور وہ الٹا ماہنور کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ تم شاویر سے کسی نہ کسی بہانے بھاری بھرکم رقم نکلوا لو، کوئی گولڈ کا سیٹ نکلوا لو۔ تو ماہنور کو لگتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کچھ رقم نکلوائی تو کیونکہ شاویر کو آلریڈی اپنی ساس پہ شک ہو چکا ہے، ماہنور کی ماں پہ شک ہو چکا ہے شاویر کو آلریڈی، اور اب شاویر کی ساس جب پیسے چوری کرتی ہے اس بات پہ، اور وہ لڑکا جو ماہنور کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، ان دونوں باتوں پہ شاویر کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا، اور اسے لگے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ لڑکا بھی ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ اپنی ساس کو پیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہوتا ہے، وہ لوگ بہانہ تو بنا دیتے ہیں، ماہنور اپنی ماں کی پردہ پوشی تو کر لیتی ہے، لیکن شاویر کو شک پڑ چکا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو ناظرین اب دیکھیں کہ